Student, this is the lecture 3 of analog electronics. Lecture 1 and lecture 5. In lecture 1 we discuss Kirchhoff's law, that is Kirchhoff's voltage law. In lecture 2 we discuss Kirchhoff's current law. In lecture 3 we will discuss different types of symbols and its transformations. In transformations we discuss voltage dividers and current divider methods. In lecture 4 we discuss the diode and how to specify which one is anode terminal and which one is the cathode terminal, how to check your diode using multimeters. We will discuss in the lecture 4. And now in lecture 5 we discuss the semiconductors and its properties. Today we discuss doping and today we discuss some important formulas that will be used in many times. Now start lecture 5. Now in lecture 5 the first is semiconductor physics, and that is the semiconductor. This is your charge carriers. We discussed the charge carrier. We say that is called as your electron charge carriers and hole charge carrier. In semiconductor there are the two types of charge carrier. One is called as your electron charge carrier and another is called as hole charge carrier. Next is called as doping. Basically the doping, we add an impurities in a pure semiconductor is called as doping. Suppose this is your water. अगर आप मान लीजिए कि ग्लास में वाटर है, तो वो वाटर है तो देर इज़ एन नो, अगर हम उस वाटर में एक सैंड को ऐड कर दें तो देर इज़ एन, उस प्योर वाटर में हमने क्या किया कि कुछ एडअप किया, तो प्योर में हमने उसे इम्प्योर बनाया, that we add in some another things, that is called as doping. In semiconductors, suppose there is an pure semiconductor element, we add an another element in the pure semiconductor. That process is called as your doping. And we discussed there is in two types of dopings. Now we discussed about the transport carrier. This transport carrier we discussed, there are the basically two method is we discuss. One is called as drift and another is called as your diffusion. This thing we'll discuss, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरियर्स में देर इज एन टू वे to the movement of your carriers, means your movement of your electrons and holes, and by using there is two. One method is called your by force. अगर आप by force, that is your electric field के कारण एक by force, that is called as drift. Or diffusion is the process that is called as concentration gradient from higher concentration to lower concentration when the electrons and holes are moving. This method is called as your diffusion. That is the way when the transport of the carriers. And that is the PN junction diodes. We discussed the structure of the PN junction diode. There is two types of biasing. We already discussed the forward and reverse bias conditions. We will be used in the lecture 4. Now the IV characteristics, what are the current and voltage characteristics, and the circuit models we will be discussed. Now सेमीकंडक्टर डिवाइस सर्व एज ए हार्ट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इट मीन्स सेज दैट देयर इज एन स्मॉल सिलिकॉन चिप्स, वी एड अप ऑल द components like your suppose your AND gate and suppose like 555 IC. So inside there is so many transistors, so many semiconductor elements are present. तो in the microelectronics world में कहा जाता है कि semiconductor device serve as a heart of the microelectronics. PN junction is the most fundamental semiconductor device. तो PN junction जो है हमारे semiconductor device का एक fundamental device है. और PN junction है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि PN junction हमारा बेसिक चीज़ है जो जानना सबको वेरी इंपॉर्टेंट.
Next we discuss the charge carrier of the semiconductors. Now the charge carrier of the semiconductors, this is your charge carrier in solid, this is the crystal structure, band gap of energy and holes. Will all these things discuss the modification of the carrier densities, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, and that is doping, and the transport of the carriers. I will discuss diffusions and drift process. This one by one we will discuss. Now in the periodic tables we discuss, in the periodic table this is the group 3 element, group 4 element and group 5 element. बेसिकली विल बी यूज्ड फॉर द सेमीकंडक्टर डिवाइस. जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं, द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर यूज्ड एंड मोस्टली वी विल बी यूज्ड एज सिलिकॉन डायोड. हम लोग सिलिकॉन डायोड यूज़ करते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि सिलिकॉन्स आर एब्रप्टली फाइंड इन द नेचर्स. सिलिकॉन जो है हमारे लार्ज स्केल में हमें नेचर्स में मिल जाते हैं. क्योंकि आप इंडिया की बात करते हैं, इन इंडिया देयर इज़ एन मैनी प्लेसेस जो हम लोग इंडिया में कहते हैं, मैक्सिमम प्लेस जो है वो हमारा क्या है, बलवाही प्लेस है. दैट इज कॉल्ड एज राजस्थान, थार मरुस्थल. तो मरुस्थली प्लेस में जो है आप देखते होंगे कि बालू में एक सिल्वर टाइप का, डेट इज कॉल्ड एज योर सिलिका, एक लार्ज स्केल में हम लोग को सिलिका मिलता है. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सॉरी सिलिका डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, तो सिलिका के फॉर्म में मिलता है. तो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है कि वाई सिलिकॉन्स आर मोस्टली यूज एज कंपेयर टू जर्मेनियम. तो उसका वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव आंसर ये है कि सिलिकाज आर एब्रप्टली फाउंड इन द नेचर. काफ़ी लार्ज अमाउंट में हमें नेचर्स में फाउंड होता है. दिस इज़ द one of the major advantage as compared to the germanium. And this is the group 3 element boron, aluminum, gallium, and the group 5 elements are phosphorus and arsenic. This group 3 and group 5 elements को हम लोग as a doping के तरह use करेंगे. And this silicon, this group 4 element is your pure semiconductor device. ये pure semiconductor device है. और इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग ये ग्रुप 3 एलिमेंट्स और ग्रुप 5 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डोपिंग. वी विल डिस्कस. बट हमें ये जानना है कि ग्रुप 5 एलिमेंट्स में कौन कौन है. ग्रुप 5 एलिमेंट्स में फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ग्रुप 3 में बोरोन, एल्युमिनियम एंड गैलियम. दिस आर द वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब और भी है. दिस ग्रुप 5 एलिमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी. Antimony भी, that is your Sb, this is defined as an Sb, it is your antimony in the group 5 elements. So these are the 3 elements in the group 5 and 3 elements in group 3, and this will be merged in the group 4 element. This process is called as your doping. Now the elements of the 3 to 5 valence electrons and the silicon is the most important. Now this is 4. Now your silicon is a group 4 elements. So now in silicon is a group 4 elements. Group 4 element, it means that there is an 4 valence electrons, because the atomic number of silicon is 14. This is the atomic number of silicon is 14, and there is an 4 valence electrons. There is an 4 valence electron. It means that in the outermost element there is an 4 valence electron. तो टोटल कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए देयर इज एन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने 4 वैलेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड होंगे टू कंप्लीट द बॉन्ड. ओके, तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर आपके हो गए 14 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, नाउ विल डिस्कस. Now in silicon we see that these are the 4 bond
because there is a 4 valence electron, and this silicon will combined with the another silicon atoms. Okay, it means that it look like this. Suppose this is your silicon, and this silicon has an 4 electrons, and these silicons are combined with another silicon atom, and it's look like this. Now this is the another silicon atom, now here there is an another silicon atoms are present here, and this silicon are bonded with this, and there is an one another 4 valence electron, there is an another, it is bonding like this. Sorry. तो यहाँ पर फिर क्या होगा, there is an another silicon here, there is an another silicon is here, and there is an another silicon is here. तो इसी तरह से क्या होगा, it is look like this silicon atom, and there is an electrons, these two silicons are make a covalent bond. क्या करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. दिस सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन, देयर इज एन 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन, एंड दिस 4 each silicon has an 4 valence electron, and that will be combined. So this type of crystal structures are formed, and all silicons are covalent bond. तो इस केस में देखिए कि आपका जितने भी कॉम्बिनेशन, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वो सारा कैसा है, सिलिकॉन एटम्स है. तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर. The word is says that intrinsic semiconductor, it is means that it is a pure semiconductor. क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ आपका एडप्ट नहीं है, ओनली सिलिकॉन एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे जैसे हम इसको एक्साइटेड करेंगे आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा. ठीक है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड आपका जैसे जैसे वीक होगा, जैसे जैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड वीक होगा तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. नाउ वी सी दैट दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया, since there is a 4 valence electron and there it can be formed as covalent bond 4 of its neighbor atoms. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी सिलिकॉन है वो अपने नाइबर एटम के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. व्हेन द टेम्परेचर गोज अप, इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स फ्री. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जस्ट अभी डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, now when this is your this structure and this structure we see in structure B. आप फिगर B को देखिए, सारा सिलिकॉन जो है एक दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कंप्लीट बॉन्डेड के फॉर्म में है, और जब ये कंप्लीट बॉन्डेड के फॉर्म में है तो देयर इज ए नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, there is a no movement of the electrons in the crystal. जो आपका जो क्रिस्टल है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री,
कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंडेड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इन दिस केस फिगर नंबर 2, एट T इक्वल टू 0 Kelvin, Kelvin is the unit, T equal to 0 Kelvin, in figure B, all the silicons are bonded with an neighbor atoms and that is a complete bond and generate a covalent bond. एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लिया है एंड देयर इज ए नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो क्रिस्टल्स में मूवमेंट तो आपका नहीं होगा, देयर इज ए नो मूवमेंट। तो it means that at T equal to 0 Kelvin there is a no free electrons. It means that this semiconductor is behave as a insulator. तो at T equal to 0 Kelvin आपका ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो आपको क्लास में बताया गया था एनर्जी बैंड डायग्राम, आप एनर्जी बैंड डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने बनाया था। तो आपको कहा था कि एनर्जी बैंड डायग्राम में दो बैंड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज योर वैलेंस बैंड and one is called as your conduction band. जब तक कंडक्शन बैंड में, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करे तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एट T इक्वल टू 0 केल्विन, एट T इक्वल टू 0 at T equal to 0 Kelvin, there is a no free electrons in this conduction band. In conduction band, no free electrons are present. No. In conduction band, there is a no free electrons are present. इसका मतलब ये हुआ कि this structure at T equal to 0 Kelvin, the figure number B is defined as an insulator. तो आप जस्ट मैंने स्टेटमेंट भी कहा था कि व्हाट इज सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर इज लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कभी उसका बिहेवियर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और कभी उसका बिहेवियर एज ए कंडक्टर के जैसा भी करता है, तो इसलिए हम लोग उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इन फिगर सी, नाउ फिगर बी में टेम्परेचर कितना है, T इक्वल टू 0 केल्विन। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपना टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो एक्साइट आप कर रहे हैं बाय यूजिंग द टेम्परेचर। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ वीक होता जाएगा, और जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता जाएगा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट। जैसे जैसे मान लीजिए लाइक दिस, सपोज दिस इज योर सिलिकॉन एंड दिस सिलिकॉन्स आर bonded with another silicon, and this silicon is, another electron is bonded here, and this इस तरह से। ठीक, अब आपने क्या किया कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होता जाएगा, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड,
और जो पहले वीक हो जाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे वो ब्रेक करेगा तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री टू मूव। दिस इलेक्ट्रॉन या दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया और बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फ्री होके मूव करना स्टार्ट कर देगा इनसाइड द क्रिस्टल। तो अब आपका क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, क्रिस्टल में मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो पहले आपका क्या था, T=0 केल्विन में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वो आपका जो इंसुलेटर था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इट मीन्स दैट at T equal to at no at T equal to 300 Kelvin, at T equal to 300 Kelvin your bond is break and that generate a free electrons. Now अब क्या होगा देखिए, अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस एनर्जी बैंड there is an electrons are present here. At T equal to 0 Kelvin this electrons are present here, but there is an all are electron, but यहाँ पर in the conduction bands are empty. T equal to 0 Kelvin की बात करते हैं तो आपका जो कंडक्शन बैंड है वो किस स्टेट में है, एक इम्पिटी स्टेट में है, इम्पिटी स्टेट में है। बट जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब हम देखते हैं वो एनर्जी बैंड डायग्राम अब कैसा होगा। यू सी इन द एनर्जी बैंड डायग्राम now the energy band diagram, now the temperature increases। now अब क्या होगा कि दिस इज योर वैलेंस बैंड and this is your conduction band. Now the bond is break, now there is an hole and now this is your electrons are generated here. Now the bond is break and there is a generation of, and now अब आप देखिए क्या हो रहा है, what is this, this is called as hole। होल क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए होल, अभी आप देखिए फिगर बी को जब आप देख रहे थे तो फिगर बी में कहीं पर भी आपको पिक्चर में होल नहीं दिख रहा होगा। तो होल आता कैसे, होल है क्या, क्या होल इज ए पॉजिटिव, नो, होल इज ए इमेजिनरी पार्टिकल्स। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स होल्स आर जनरेट। जहां पर इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होगा, जहां पर होल्स का एब्सेंट होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंट होगा, वहां पर होल का जनरेशन होगा। अब देखिए इस केस में जस्ट अभी हमने बताया कि एक सिलिकॉन ले लीजिए एग्जांपल पे, तो आप यहाँ समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका सिलिकॉन है और जैसे ये सिलिकॉन ब्रेक हुआ, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कोवेलेंट बॉन्ड था, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है मूव करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेस में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट विल बी गोज हियर। तो इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल जनरेट होगा। इट इज द मीनिंग ऑफ द होल। होल इज एन इमेजिनरी पार्टिकल्स, इट जनरेट इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा वहाँ पर होल जनरेट होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपका कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज योर, this electron is called as your
फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक हुआ और आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गया। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। Now we see in this case, now if the temperature is increases T1, T2 and T3, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाइएगा, the number of electrons and holes are increases, we see in this figure, we already discussed. Now with free electrons breaking of the covalent bonds, holes are generated. Holes can be filled by absorbing other free electrons, so effectively there is a flow of charge carriers. Now, so this is the concept of your it says that the bond breaks, electrons and hole pair का जनरेशन हमने समझ लिया। अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक फार्मूला देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फार्मूला को याद रखिए, क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, जो हमने इलेक्ट्रॉन जो हमारे फाइंड हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, Ni, it is denoted as an Ni. This is the 5.2 into 10 to the power 15. It is a very important, what are the relation between the free electron density at a given temperature, it is T to the power 3 by 2 exponential minus Eg 2 kT by electron, where K is called as your Boltzmann constant, T is the temperature in Kelvin, and Eg is called your energy gap. This is called as band gap energy. ठीक है, we discuss in this, all the things are discussed in the lecture. And अब आपके ऑब्जेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका Ni है, व्हाट आर द रिलेशन विथ एन टेम्परेचर, Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T to the power of 3/2. ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, that is Ni is directly proportional to T to the power 3/2. Now Eg is called your energy या band gap of the energy, determine how much efforts is needed to break off the electron from its covalent bond. We discuss about the valence band, जो हमने energy band diagram here we discuss. This is the energy band diagram and this is called your energy gap, and we see in this gap is called your energy gap. दिस इज एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वैलेंस बैंड और कोवैलेंट बॉन्ड में, उतना ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से समझिए कि सपोज ये मान लीजिए आपका वैलेंस बैंड आपका घर है, ठीक है, दिस इज़ योर होम, ये आपका घर है और ये आपका कॉलेज है। आपको घर से कॉलेज की ओर जाना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं कटिहार में हूँ, कटिहार में मेरा कॉलेज है और हम कटिहार में ही रह रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत कम होगा। कटिहार में ही आप रह रहे हो और कटिहार में ही कॉलेज है आपका, तो डिस्टेंस कम है। मान लीजिए कि आप भागलपुर में रह रहे हो और आपको कटिहार कॉलेज डेली आना है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड योर एनर्जी गैप। बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट गैप इज कॉल्ड योर एनर्जी गैप। इफ द मोर द एनर्जी गैप, more energy will take to jump from valence band to conduction band. There exists the exponential relation between the free electron density and band gap. This is a very important formula. Next we discuss about the doping. What do you mean by doping? Doping का मतलब ये है कि we add an impurities in a pure semiconductor materials. आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, मान लीजिए लाइक सिलिकन, आप सिलिकन की बात कर रहे हैं और इस सिलिकन में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो डेट इज़ योर कॉल्ड एज योर डोपिंग। दिस इज कॉल्ड योर डोपिंग। ओके,
अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं आर प्योर सेमीकंडक्टर। The free electrons in the material due to only the natural cause are known as intrinsic semiconductors. So we say that this is called as intrinsic semiconductor, that is a pure semiconductor. In extrinsic semiconductors we say that the characteristics of pure या intrinsic semiconductor materials can be altered significantly by adding of certain impurities atoms into the pure semiconductor materials. मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ को एटम्स को ऐड करते हैं या कुछ अनदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं एटम्स को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर डोपिंग। उसको हम लोग डोपिंग करते हैं, उसको हम लोग, और जब डोपिंग कर देते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमने किसी भी प्योर में कुछ ऐड कर दिया तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर वो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस आर द डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज योर एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। वन इज कॉल्ड एज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पेंटावैलेंट टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं ट्राईवैलेंट। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट। अनदर नेम ऑफ द p type trivalent type, another name is called as your acceptor type. We'll discuss each and every point. Acceptor type. Acceptor type. And pentavalent is called as, also another name is called as donor type. So basically your extrinsic semiconductors are two type, n type semiconductor and p type semiconductor. n type semiconductor का another name is called as your pentavalent या donor type, and p type semiconductor is also another name is called as trivalent type, trivalent impurities या another name is called as acceptor type. Now we discuss doping, and that is n type semiconductor. तो n टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम समझ गए कि इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की।
पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज की बात कर रहे हैं या हम लोग डोनट टाइप इम्प्यूरिटीज की बात? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज योर ग्रुप 5 एलिमेंट। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रुप 5 एलिमेंट। और आपने भी जस्ट लेक्चर में पढ़ा ग्रुप 5 एलिमेंट्स में हमारे क्या आते हैं? फास्फोरस, आर्सेनाइड, एंटीमोनी। These are the example of your group 5 elements। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं किसका मतलब थोड़ा समझते हैं क्या हुआ। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट अभी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर को देख रहे थे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर था, बट इस स्ट्रक्चर में हमने एक फास्फोरस को ऐड कर दिया। ठीक है, आपका ये सब कुछ सेम था, इस सिलिकॉन के जगह पर हमने क्या किया, वहाँ पर एक फास्फोरस को ऐड कर दिया। और जैसे ही हमने फास्फोरस को ऐड किया तो हमें पता है कि फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस बैंड। इन फास्फोरस इट इज ग्रुप 5 एलिमेंट्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। लेकिन एक सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो इसने क्या किया, हर दैट इज इन 1 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग विद दिस, 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हेयर, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयरिंग कर लिया। फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, देयर इज एन 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इसके नाम पर हम चलते हैं। तो जस्ट अभी वर्ड हमने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब ये हुआ 5, 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये फास्फोरस हम यूज कर रहे हैं ग्रुप 5 एलिमेंट, इसका नाम हो गया पेंटावैलेंट। दूसरी बात अब ये देखिए, अगर आपको ध्यान हो, आप केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं NaCl। NaCl की अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस बहुत कॉमन है इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। NaCl जिसमें आप N को क्या लिखते हैं? N इज ए पॉजिटिव और Cl इज माइनस, ऐसा आप लिखते हैं। पॉजिटिव आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको? क्लोरीन को। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? क्लोरीन को। इट मीन, इसलिए आप इसका साइन क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पर भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस की भी टेंडेंसी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है। आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर कोवैलेंट बॉन्डिंग, ही हैज एन टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। तो इस 5th इलेक्ट्रॉन जो आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आपने ग्रुप 5 एलिमेंट हम एन टाइप यूज करते हैं, तो ग्रुप 5 एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अभी भी है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। तो पेंटावैलेंट क्यों कहे? क्यों ग्रुप 5 एलिमेंट यूज कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको देने की टेंडेंसी अभी भी है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डोनर टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इस केस में जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इस केस में हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वी विल बी सी। अब हमारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा, इट्स लुक लाइक दिस। पहले आपके एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या थे? एक वैलेंस बैंड and it is called as
कंडक्शन बैंड है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा कि ये जो आपका एनर्जी बैंड इन कंडक्शन बैंड है, दिस इज फॉर EC, एंड यहाँ पर EV, वैलेंस बैंड एनर्जी, ओके, जो हमने अभी तक देखा है। अब हम देखेंगे जब आप डोपिंग ऐड करेंगे तो देयर इज एन वन एनर्जी band is added, and that is called as your this energy. Just below the conduction band, one energy band is generated, that is called as your ED. ED stand for donor type impurities. ED का मतलब है that is donor type impurity, donor type energy, ठीक है। आप यहाँ पर क्यों डोनर टाइप यूज कर रहे हैं, ED, यहाँ पर एक एनर्जी बैंड, एनर्जी जनरेट होगा, डेट इज डोनर टाइप। और इसमें क्या होगा, ये जो डोनर टाइप आपका डिस्क्रीट के फॉर्म में है, यहाँ पर आपका जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है डेट आर प्रेजेंट हियर इन द डिस्क्रीट, दिस आर द एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये तो जस्ट वन फिगर है, देयर इज इनसाइड द क्रिस्टल so many free excess electrons are present, because ये तो there is a small, there is a millions of excess electrons are present in the discreting forms like this, ठीक है। तो this electron is your excess electron, excess electron, ओके। नाउ अब ये देखिए क्या होगा, दिस गैप इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नाउ दिस एनर्जी गैप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, it is approximately equal to 1 electron volt, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, एट T इक्वल टू 0 केल्विन में हम अगर बात करते हैं, so there is a no free electrons are present in the conduction band। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते। दिस इज योर एक्सेस इलेक्ट्रॉन बट नॉट ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हमारे कंडक्शन बैंड में नहीं है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज बिटवीन द कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी के बीच में है। जैसे आपने एट T इक्वल टू 0 केल्विन T इक्वल टू 0 केल्विन, इट इज बिहेव एज एन इंसुलेटर। ये अभी भी कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते थे अप टू द रूम टेम्परेचर, देन योर बॉन्ड इज ब्रेक। बट इस केस में देखिए क्या है कि देयर इज एन वेरी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बहुत ही मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विल गोज जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड। नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, there is a small change in the temperature, अब small increase in the temperature, this donor energy, donor excess electron will goes to the conduction band। ये जो आपके डोनर एनर्जीज इलेक्ट्रॉन है, डोनर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस विल गोज टू द कंडक्शन बैंड, और ये कहाँ पर आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ गया। नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। अब मान लीजिए कि ये आपके आ गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाइएगा, और मान लीजिए आपने रूम टेम्परेचर तक इंक्रीज कर लिया, मतलब अब आपका टेम्परेचर T इक्वल टू बी सी, T इक्वल टू 300 Kelvin. At the time, all this donor energy excess electron will reach to the conduction band. सारा एक कंडक्शन बैंड में ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स है ये क्या होगा, वीक होता जाएगा और ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि अब ये जो वैलेंस बैंड में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो अब इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, डेट इलेक्ट्रॉन at that time that electron will goes here। तब तक में ये जो आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ऑलरेडी रीच कर चुका है। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि आपका होल एक है। आपने जब एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब हमने इस सेमीकंडक्टर की बात की थी, प्योर सेमीकंडक्टर की बात किए थे, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना था कि जब आप इस प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर कितने होल थे, देयर इज एन 2 होल्स and there is an 2 electrons are present in the conduction band. In the pure semiconductor, the number of electron is equal to the number of holes in pure semiconductor. But in n-type semiconductor जब हम read कर रहे थे, we discuss in the n-type semiconductor, अब यहाँ पर there is an 1 holes but there is an more than 1 electrons are present in the conduction band. It means that in the pure semiconductor the number of electrons is equal to the number of holes, but in the n-type semiconductor the number of electron is greater than, far greater than the number of holes. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि in n-type semiconductor electrons is the majority carrier. Very important, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ। in n-type semiconductor, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मेजॉरिटी कैरियर concentration. So electron is the majority carrier concentration in the n type semiconductor. And what is hole? Hole तो होगा, hole is called minority carrier concentration. Minority carrier concentration, क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है, तो आपका होल मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, बिकॉज सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर and hole is your minority carrier concentration. Now in pure silicon can be doped with another element, change its electrical properties. For example, silicon is doped with phosphorus, then the more electrons and become it is n type semiconductor. तो n type semiconductor का मतलब ये है कि this electron is an majority carriers as compared to the whole. Now next we discuss doping in p-type semiconductors. Now in p-type semiconductors it is says that p-type semiconductor is called your trivalent impurities. Trivalent impurities का मतलब ये है it is group 3 elements. Group 3 element में क्या होगा, boron has an only 3 valence electrons. बोरोन के पास क्या है, there is an only 3 valence electrons are present. It means that
there is an only this electron and this electron. तो ये क्या किया कि देखिए ये 3 सिलिकॉन के साथ इसने कोवैलेंट, ये सिलिकॉन, इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के साथ इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। बट इस सिलिकॉन की अगर हम बात करें, क्योंकि बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोरोन के पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ उन्होंने पेयरिंग कर लिया। बट ये सिलिकॉन के साथ इन्होंने इनकम्प्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इनकम्प्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब ये है कि देयर इज एन एब्सेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एब्सेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इस सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है बट इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एब्सेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा, होल। तो इन पी टाइप सेमी कंडक्टर्स होल्स इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर्स में आपका होल जो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में होगा एज कंपेयर टू द एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो अब हम लोग एक बात करते हैं कि पी टाइप जो सेमी कंडक्टर है, जिसको हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सेप्टर टाइप कर रहे हैं। एक्सेप्टर टाइप का मतलब ये है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl, तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, लेना, तभी उसका बॉन्ड कंप्लीट होता है। यहाँ पर बोरोन की टेंडेंसी क्या होगी कि बोरोन भी चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने बॉन्ड को कंप्लीट कर लें। तो बोरोन की टेंडेंसी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स बॉन्ड इज कंप्लीटेड। तो ये बॉन्ड क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बोरोन की टेंडेंसी होगी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम लोग इसको पी टाइप सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एज योर एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर। Okay, now summary of this charge, this is your intrinsic semiconductor, and we discussed this is your pure semiconductor, only the silicons are present. So this is called your intrinsic semiconductors, and in extrinsic semiconductors we discussed as a 2 type, that is called your N type semiconductor because it is a pentavalent impurities, group 5 element, that is phosphorus are added, so that is called your N type या dopant type या donut type. I will discuss donut type, and that is the free electrons is the majority carriers, this electron is the majority carriers. In this case, in p type semiconductor, that is called trivalent impurities, इसमें क्या होता है, होल इज द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, होल जो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में होता है। एंड व्हाट इज ND, ND स्टैंड फॉर डोनर कंसंट्रेशन, और Na जो डिफाइन करते हैं वो होता है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, दैट इज होल कंसंट्रेशन। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में मैंने एक चीज़ आपको एज ए होमवर्क दिया है, वी विल गो टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट पर जाएं और आप देखें कि जो मैंने पी टाइप सेमी कंडक्टर में मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं बनाया। आप एनर्जी बैंड डायग्राम को रीड करें, और रीड करने के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इन द क्लास, फिर डिस्कस किया जाएगा इन द क्लास में कैसे पी टाइप सेमी कंडक्टर में जो आपका डोनर, जो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है, इस एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में फिर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स, और इसमें काफ़ी कुछ है। आपने आज के क्लास में देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज़ योर प्योर सेमीकंडक्टर्स। फिर उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड किए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। आपने देखा कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करने का 2 प्रोसेस है, दैट इज़ योर कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको आप लोग पेंटावेलेंट ग्रुप 5 एलिमेंट्स ऐड करते हैं। एक आपने देखा पी टाइप डोपिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप ट्राईवेलेंट, जिसको हम लोग ग्रुप 3 एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद उसे कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगे, वी विल बी डिस्कस लेटर ऑन। बट हम लोग ने देखा, उसके बाद हम लोग ने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम में डिस्कस किया, और हम लोग ने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम में डिस्कस किया, तो वहाँ पर एक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में एक न्यू टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम, दैट इज़ कॉल्ड एज डोनर एनर्जी गैप, वहाँ पर एक जनरेट हुआ, जिसमें आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन था। उस एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड और
जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड वो एनर्जी बैंड जनरेट हुआ था और उसका एनर्जी गैप था 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए तो क्या हुआ कि जो आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, और डेट इज़ योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद हो गया, एंड इट इज़ फ्रीली टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल। तो इस केस में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर एज कंपेयर टू द होल। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जंप हो रहा है तो एक होल का जनरेशन होता है। और इन द प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में स्टेटमेंट में हमने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। So these are the discussions in this lecture 5. I think you understand all these things. If any doubt, we will be write in the queries box. I will solve your problem. Thank you.